Hello everyone, welcome to my channel Easy to Remember. This is Shrutika Surti. Today I will be covering the topic Supply Chain Management. So let's start with our today's video, that is Supply Chain Management. Supply Chain Management means क्या होता है? जैसे in the previous video we studied about physical distribution research. In that physical distribution होता था of goods and services from the production center to the ultimate consumer, और in between जो goods का supply होता था उनका management कैसे होता है, that we are going to study today in this video. So let's move ahead. Topics to be covered in this video are meaning of supply chain management, features of supply chain management, and components of supply chain management. So let's move to our first topic, that is meaning of supply chain management. Meaning of supply chain management. The full meaning of supply chain management, I have divided that into 4 parts so it becomes easy to understand and memorize, and also from exam point of view it becomes easy to learn this meaning of supply chain management. So let's study in detail every part. First part is planning, organizing, executing and controlling. So supply chain management is nothing but a process. Supply chain management एक ऐसा process है जहाँ first you need to plan the things. You have to plan that how you are going to supply the goods and services from the production center to the ultimate consumers. Then you need to organize the required materials or raw materials accordingly, and then you need to execute what you have planned at the beginning, and then accordingly you need to control and take the corrective measures if needed. So this is what the first part of meaning of supply chain management says. तो first part क्या है तुम्हारा? That it is nothing but a process of planning, organizing, executing and controlling. Planning करना है, accordingly raw materials organize करना है, and then you need to execute. जो तुमने plan किया है वो execute करो and then corrective measures लो. So this was first part. Next part is all those activities. अभी हम planning, organizing, executing and controlling किसका करेंगे? तो सेकेंड पार्ट है कि ऑल दोज एक्टिविटीज़, मतलब वो सारे ही एक्टिविटीज़. तो थर्ड पार्ट है कि कौन से एक्टिविटीज़. सो थर्ड पार्ट सेज procuring raw materials, production of goods and its distribution to final consumers. So all the 3 parts we'll learn together now. That supply chain management is nothing but planning, organizing, executing and controlling वो सारे ही एक्टिविटीज़, यानी कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ ऑफ कौन से एक्टिविटीज़? प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड देन उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना. ये सारे ही एक्टिविटीज़ की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग करते जो है वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग. इन अ सिस्टमैटिक एंड इकोनॉमिक वे. ये हमें सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें करनी है एंड ये करते टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल, जो हमें परवड़ना चाहिए. सो इन शॉर्ट मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग. क्या? तो all those activities. Which activities? Procuring raw material, producing the goods and then finally distributing it to the final consumers. But you have to make sure that it should be in a systematic way and economical way. Let's now look towards the features of supply chain management. Features क्या क्या है supply chain management के? अभी whenever you study you have to observe that जो तुम्हारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फीचर्स होंगे वो ही तुम्हारे इम्पोर्टेंस में भी हो सकते हैं एंड
कोई और क्वेश्चन के भी आंसर्स हो सकते हैं. सो इट इज़ ईजी if you study by observing all the theories at a time. It becomes easy if you correlate and interrelate the theories and study. So let's start with the features of supply chain management. First features is flow of goods and services. Obviously supply का मतलब ही होता है कि flow of goods को supply करना है हमें from production to the ultimate consumer. So the first feature is flow of goods and services from producers or suppliers to the ultimate consumers. So this is the first feature. ये feature है supply chain management का कि goods को हमें production या suppliers से ultimate consumers तक पहुंचाना है. So that is flow of goods from producers or suppliers to the ultimate consumers. Second point is network of chain. नेटवर्क ऑफ चेन मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक नेटवर्क है ऑफ व्हाट. सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एट्सेट्रा. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, जैसे हमने मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन में पढ़ा कि इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग. द सेम वे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका स्टोरेज होता है कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली स्टोरेज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है. तो ये सारे ही एक्टिविटीज़ का एक कॉमन नेटवर्क बन जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो ये इसका फीचर है दैट ये सारे एक्टिविटीज़ का एक नेटवर्क बन जाता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ term representing the network of chain of all these activities like production, distribution, storage and inventory. So that is why network of chain. Thirdly, independent but interdependent. Very important point कि supply chain management में जो भी एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे ही इंडिपेंडेंट होंगे. लाइक प्लानिंग भी, प्लानिंग इंडिपेंडेंट है कि प्लानिंग तुमको करना है. डिस्ट्रीब्यूट तुम कर रहे हो, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. बट अगर प्लानिंग नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आगे की और एक्टिविटीज़ नहीं होंगे. सो दैट इज़ द रीज़न अगर इंडिविजुअली ये इंडिपेंडेंट है तो भी ये इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा स्टोरेज नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा. सो दैट इज़ कि ये खुद में अगर इंडिपेंडेंट है भी तो भी दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दे आर इंटरडिपेंडेंट. एक्टिविटीज़ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर डिफरेंट बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम देखें तो मैन्युफैक्चरर का काम होता है प्रोड्यूस करना, गुड्स मैन्युफैक्चर करना, एंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना वही गुड्स को आगे अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक. बट ये दोनों के ही काम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर एक्टिविटीज़ टू बी फर्दर टेकन. सो दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट. Our fourth point says 7 R's. It includes the 7 R's. 7 R's मतलब क्या होता है? That right product, right quantity, right condition, right place, right time, right customer and right price. So this is the 7 R's of सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सही प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में और सही कंडीशन में सही जगह पर सही वक्त पर सही कस्टमर को सही प्राइस में दे. सो दैट इज़ व्हाट द 7 R इज़ अबाउट. दैट इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट दे हैव टू produce the right product in right quantity and in right condition, and they have to deliver it to the right customer at right place and right time with right price.
So these are the 7 R's of supply chain management. So fifth feature is flow of goods or services. So that is what first point भी हमने पढ़ा कि flow of goods or services था from suppliers to ultimate consumer. So fifth point says that it covers activities like procurement of goods, production and distribution of goods to the final consumer for final consumption. Now this chart of supply chain management, it shows all those activities like management, time to market, plan, distribution, procurement, profit, etc. मीन्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं that you have to first produce the goods, then you have to make it available for the final consumers, you have to distribute that goods for the final consumption. So there are lot of activities to be undertaken under supply chain management. So it includes many activities, it includes many chain, and वो chain के through, वो network के through ही goods का flow होता है. Our sixth feature is SCM activities. It means supply chain management activities. So it includes the following activities. Following activities of what? Strategic planning, demand planning, supply planning, procurement, manufacturing, warehousing, order fulfillment, and then transportation. So supply chain management, it includes all those activities. As I told you in the earlier slides, that it includes many activities under it, many activities, many channels you have to undergo in order to overcome a supply chain management. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है. यू हैव टू प्लान फॉर द पर्टिकुलर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. यू हैव टू procure the raw materials, manufacturing planning करनी पड़ती है, warehousing planning, order fulfillment and then transportation. ये सारे ही activities you need to fulfill under supply chain management. तो यहाँ पे features में भी बहुत सारे points ऐसे हैं जो interrelated है. If you study one point, वो तुम्हारा already तुम वही point को elaborate करके तुम्हारा next feature लिख सकते हो. तो इन शॉर्ट ये सारे का कंक्लूजन ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको ओवरकम करके ही यू कैन कम टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ये भी वही है जो एक्टिविटीज़ हमने देखी कि प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है. द सेम आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो लेट्स लुक इनटू इट. फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट. कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ प्लानिंग. हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या हम कुछ अपना न्यू करियर स्टार्ट करें, हम स्टडीज़ स्टार्ट करें, हम पढ़ने बैठे, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करें, हम कुछ भी स्टार्ट करें, द बेसिक थिंग वी हैव टू डू इज़ प्लानिंग. करियर स्टार्ट करने हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है. पढ़ने बैठते हैं, वी डू प्लानिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वी स्टडी देन. तो कोई भी चीज़ हो, प्लानिंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट. It helps in clearing doubts and uncertainties and provide fairly accurate data. So, supply chain management, supply start करने से पहले हम पहले एक प्लानिंग बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर एक्शंस परफॉर्म करेंगे. तो दिस प्लानिंग, ये प्लानिंग हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? बाय स्टडिंग द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स को हम स्टडी करने के बाद उनके अकॉर्डिंगली हम प्लान बनाते हैं. रॉ मटेरियल्स क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मैन पावर कितना है, एवरीथिंग वी हैव टू कंसिडर. वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड देन वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. एंड वो प्लानिंग के बेसिस पे हम हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी बेसिक कंपोनेंट ऑफ anything, not only supply chain management but anything. और हम प्लान करते हैं तो हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग करते टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हैं. सो वी क्लियर आर डाउट्स बाय प्लानिंग. अनसर्टेनिटीज़ जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं. हम प्लान करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे. तो वी हैव टू प्लान. सर्टेनिटीज़ एंड अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रख कर वी हैव टू प्लान एनीथिंग एंड प्रोवाइड फेयरली एक्यूरेट डेटा. ये सारी चीज़ें प्लानिंग के बाद ही. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान एवरीथिंग, बट वी कैनॉट अवॉइड दिस एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग से ही शुरुआत होगी किसी भी चीज़ की. प्लानिंग से ही शुरुआत होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की. एंड आफ्टर प्लानिंग इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अ इफेक्टिव सप्लाई चेन सिस्टम. इसी से होगा. आवर सेकेंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन. Information means availability of latest and continuous information about production and market trends on regular basis. इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तुम कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर्स, तो तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ द लेटेस्ट प्रोडक्शन, मतलब मार्केट ट्रेंड्स क्या है. तुम्हारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होने चाहिए. Continuously you have to keep yourself informed about the market trends on the regular basis. अगर हमारे पास information नहीं है, in the absence of any information, it becomes difficult to schedule the procedure. हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कोई डिलीवरी को शेड्यूल करें एंड गुड्स को डिलीवर करें. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टीम जो हमें रेगुलर बेसिस पे लेटेस्ट एंड कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन देते रहे. सो आवर थर्ड पॉइंट इज़ सप्लायर्स. सप्लायर्स में क्या होता है. ऑब्वियसली सप्लायर इज़ अ कंपोनेंट, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लायर ही मेन प्ले करता है रोल. सप्लायर्स ही नहीं होंगे तो हम सप्लाई कहाँ से करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का. So it is necessary to select a team of suppliers for uninterrupted supply of raw materials within the cost and time limit. हमारा एक लिमिट होता है, कॉस्ट लिमिट एंड टाइम लिमिट में हमें रॉ मटेरियल्स सप्लाई करें. ऐसे टीम ऑफ सप्लायर्स हमें सिलेक्ट करने, हमें ऐसे सप्लायर्स बनाने हैं. सो सप्लायर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी कि सप्लायर हमें टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई करे एट अ राइट प्राइस एंड राइट क्वांटिटी पे हमें सप्लाई करे. एंड इफ़ द सप्लायर फेल्स, अगर सप्लायर ये नहीं कर पाता टाइम पे, तो उसके वजह से हमारा प्रोडक्शन में डिले होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिले होता है, एंड फाइनली अ बिजनेस सफर्स अ लॉस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि we have a particular team of suppliers so that our supply of raw materials is uninterrupted, and also it should be within the cost and time limit. Our fourth point is production. Production में क्या होता है, proper planning of production activity होनी चाहिए. It requires an arrangement of raw material, manpower and inventory. Means when we arrange the raw material, manpower and inventory with the help of these all the activities, these all the components, it is helpful for us to produce the goods. प्रोडक्शन जो है वो प्री कंडीशन है, मतलब प्रोडक्शन तो होगा ही, प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सप्लाई कैसे होगा. सो इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट दैट प्रोडक्शन होना ज़रूरी है. प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का अरेंज होना, मैन पावर होना, इन्वेंट्री होना चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स का. नाउ आवर चार्ट हियर शोज इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अभी ये चार्ट में वो सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे परचेसिंग सप्लायर. परचेसिंग मतलब सप्लायर होते हैं. इट कंटेन्स अ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज सप्लायर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल, demand and lead time management, materials management, manufacturing assembly, storage and transportation, order fulfillment and consumer analysis. So these are the different components integrated supply chain management के. Then our fifth point of component is inventory. Inventory is a component, मतलब stock होना ज़रूरी है हमारे पास. supply chain management, अगर हम कोई चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और प्रोडक्ट्स को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग फ्लक्चुएशंस. हमारे पास वो गुड्स का स्टॉक होना, इन्वेंट्री होना
ज़रूरी है. So that is what here they have written. Maintenance of adequate inventory is very useful for smooth flow of production and distribution of products or services. If अगर हमने इन्वेंट्री या स्टॉक किसी गुड्स का नहीं रखा, देन और वो डिमांड आया गुड्स का, सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हमने स्टॉक ही नहीं रखा है तो हम डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ enough amount of inventory, enough amount of stock with us, because it will help for the smooth flow of production and distribution of goods. Sixth point is transportation or distribution. ट्रांसपोर्टेशन, हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, प्लानिंग कर ली, सप्लायर है हमारे पास, हमने इन्वेंट्री मेंटेन कर लिया. अभी ये सारी चीज़ें अगर हो गई है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन और या वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो लगेगा. सो इट कीप्स अ गुड रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अलाउइंग द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स टू दी कंज्यूमर ऑन टाइम. तो कंज्यूमर्स को वो गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन टाइम मिलना चाहिए, ऑन टाइम कंज्यूमर्स को वो गुड्स पहुंचने चाहिए. तो उसके लिए ये मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का. ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन क्या है कि उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी गुड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने पास रखा है उस गुड्स का रिकॉर्ड दे शुड हैव. देन दे शुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स. अगर फ्रीली फ्लो नहीं हो रहा है गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स, अगर कोई बीच में प्रॉब्लम्स आती है, सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. थर्डली, टू डिलीवर द गुड्स टू द कंज्यूमर ऑन टाइम. वो गुड्स कंज्यूमर के पास जो टाइम पे पहुंचना चाहिए वही टाइम पे डिलीवर करना. दिस ऑल इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर रिड्रेसल. कंज्यूमर रिड्रेसल में क्या होता है कि एवरी कंज्यूमर, हर कंज्यूमर को ये हक है दैट इफ़ दे हैव रिसीव्ड अ डिफ़ॉल्टेड प्रोडक्ट और गुड्स, अगर उनके पास उनका गुड्स डिफ़ॉल्टेड है या ख़राब है, सो दे हैव द राइट टू क्वेश्चन द सप्लायर, दे हैव द राइट टू आस्क फॉर जस्टिस. A company should permit consumers to return goods, replace or recall the product and compensate the loss to the consumers. अगर वो प्रोडक्ट डिफ़ॉल्टेड है या ख़राब है तो कंपनी शुड परमिट, कंपनी अलाउ करनी चाहिए कंज्यूमर्स को कि वो अपना गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, या तो कंपनी अपना गुड्स उनसे रिटर्न लेकर उन्हें न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे, या तो फिर उनको जो लॉस हुआ है वो कंपेंसेट करे. सो कंज्यूमर रिड्रेसल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना इज़ द मेन थिंग. So this is consumer redressal, that consumers have the right to ask a question if they have been received a defaulted product. So these were all the components of supply chain management. So today we studied meaning of supply chain management, features of supply chain management, and components of supply chain management. Thank you everyone for watching my video. If you like the content of the video, do subscribe my channel, Easy to Remember. Don't forget to press the bell icon, and if anyone needs notes for this, do let me know in the comment box. Thank you. Stay tuned for more videos.